Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the chapter Trees written by Adrienne Rich. Let us know about the poet. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. She has written this poem in 1963 and it was published in 1966 in the book Necessity of Life. Let us go through the first stanza. The tree inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by moving. So in this first stanza, the poet is saying that the trees are moving out of the confined house into the open forest. जो पेड़ हैं वो अब यहाँ इमेजिन करना बहुत कठिन है. देखिए इमेजिनरी है, यहाँ पे इमेजरी है कि पेड़ जो हैं वो बाहर आने की, घर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर हम इसे सिंबलाइज कर लें कि इस पेड़ जो हैं वो औरत हैं और वो आने की कोशिश कर रही हैं, तो ये आसानी से समझा जा सकता है. दिस इज़ अनरियलिस्टिक as trees are immovable, and hence we realize that poem has a symbolic meaning. We interpret that trees refers to female who have healed themselves and are ready to move out of their homes into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. Further, she adds that the forest has been empty for the past many days, and so no birds can be seen as they do not have any trees to sit on. No insects can be seen as they do not have any shelter, and sunlight cannot form any shadow. The forest of humanity has remained empty for many days, but will soon be full and bright. तो यहाँ पे कह रही हैं कि पेड़ जो हैं, जो औरत हैं, जो नारी है, जो नारी शक्ति है, वो बाहर आना चाह रही है, घरों से बाहर आना चाह रही है और वो अपने आप को तैयार कर रही है, अपने आप को हील अप कर रही है कि वो घर से बाहर निकल सके और दुनिया समाज में आ सके और समाज में आकर मैनकाइंड के लिए कुछ कर सके, क्योंकि नारी में वो सारी क्षमताएं होती हैं. वो ममता की मूरत भी होती है, वो चंडी का रूप भी होती है, तो वो हर जगह अपना वर्चस्व बना सकती है, वो समाज को और सुंदर बना सकती है, क्योंकि उसके सोचने की क्षमता अलग है. तो अभी तक जो है पेड़ों पे चिड़िया नहीं बोलती थी, अभी तक कीड़े मकोड़ों को छुपने की जगह नहीं थी, अभी तक सूरज अपनी परछाई नहीं बना पाता था. जो संसार है उसमें इंसानियत की कमी लगती थी, लेकिन अब उसमें ये सारी चीज़ें होंगी. लिटरेरी डिवाइस जो इस स्टैंजा में है वो है पर्सोनिफिकेशन. सन बरीज इट फीट, सन के फीट बताया गया है तो पर्सोनिफिकेशन है. इंजैबमेंट तो पूरे पोएम में है, क्योंकि इंजैबमेंट का मतलब ही होता है कि पंक्चुएशन मार्क्स ना होना, जहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, तो इंजैबमेंट है. एनाफोरा है, बार बार दो जगह नो आया है, रिपीटेशन है. इमेजरी में द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ये काइनेस्टिक इमेजरी है, मतलब काफ़ी फोर्स दिया गया है इस चीज़ पे, सोचने पे मजबूर किया गया है कि सोचा जाए. आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. All night the roots work to
disengages themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the grass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patient, half days moving to the clinic door. Disengages means remove, strain means pressure, twigs means small stems, exertion means effort, cramp means restrictive, boughs means branches, shuffling means mixing, discharge means sent out, days means stunned. The poet explained the struggle done by the plants to reach the forest. She says that the roots worked for the whole night to separate themselves from the veranda. यहाँ पे पोएट बता रही हैं कि पूरी रात मतलब जो नारी हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, वो पूरी रात मेहनत कर रही हैं अपने जड़ों से अपने आप को अलग करने की। जड़ों से मतलब अपनी जिम्मेदारियों से, अपने घर में फैलाए हुए जो उनके रिश्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे वो बाहर आना चाह रही हैं और प्रयास कर रही हैं। और द लीव्स ट्राइड हार्ड टू रीच द विंडोज़ ऑफ द ग्लास सो दैट दे कुड गो आउट। और जो पत्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि विंडो के बाहर जाएं और वो निकल सकें बाहर। इवन द स्मॉल स्टेम ऑफ द ट्रीज पुट मच ऑफ देयर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू सेट देमसेल्फ फ्री। यहाँ तक कि छोटी छोटी टहनियाँ भी कोशिश कर रही हैं कि वो बाहर निकल कर जाएं, और वो एक्सर्टमेंट थक जा रही हैं प्रयास करते करते। द बिग ब्रांचेस आर ऑल्सो ट्राइंग अ लॉट टू गो आउट फ्रॉम द रूफ ऑफ द रूम। और बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस हैं, जो डालें हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं कि रूम की छत से वो निकल कर बाहर चली जाएं। वी कैन से दैट द वुमेन आर डिस्परेट। अब ये चीज़ ये दर्शाती है कि जो नारी हैं वो जो है वो क्या है, वो डेस्परेट हो गई है, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है फॉर द चेंज, कि चेंज लाकर रहेंगे। एंड देयर एफर्ट्स इज़ कंपेयर्ड टू दैट मेड अ पेशेंट हु हैज़ बीन रिलीज्ड from the hospital, and he tries to move out in a hurry, although he is confused, maybe because they are half conscious and are ready under the influence of some medication. They are unsteady but in a hurry to leave the clinic. अब यहाँ पर औरत जो है बहुत डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चाह है कि वो बाहर निकले। वो बिल्कुल उस पेशेंट की तरह है जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है और डिस्चार्ज होकर बहुत जल्दी से कंफ्यूज्ड है, वो आधी नींद में है, वो हाफ डेज्ड है, मीन्स आधी नींद में है, अभी दवाइयों का असर नहीं ख़त्म हुआ है और वो वहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना किसी को कभी पसंद नहीं होता है। वैसे ही ये पेशेंट वहाँ से भाग रहा है, वैसे ही नारियाँ भी चाहती हैं कि वो इस माहौल से निकलकर बाहर आए। यहाँ देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइस। हमने बताया था इंजैबमेंट है, सिमली है। सिमली क्यों है? ट्रीज कंपेयर्ड टू पेशेंट लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये लिखा हुआ है लाइन में, लाइक न्यूली लाइक है इसलिए सिमली है। पर्सोनिफिकेशन, ट्विग्स एंड बोज हैव बीन पर्सोनिफाइड। ट्विग्स को एक्सर्शन की थकान हो रही है और बोज जो हैं वो शफल कर रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। आई सिट इनसाइड open to the veranda, writing long letters in which I secretly mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still upon. The smell of leaves and leaves still reaches like a voice into the room. अब डिपार्चर का मतलब तो आपको पता ही है, लीविंग होता है। सेक्रेसली का मतलब बेयरली होता है। लेचन जो है क्रस्टी पैचेस ऑफ बुश ऑफ फंगी एंड एल्गी ऑन ट्री ट्रंक्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट स्मेल।
The poet says that she is sitting in veranda writing long letters. Poet कहती हैं कि मैं वरांदा में बैठ के लंबे लंबे खत लिख रही हूँ. Such she does not mention about the trees leaving her house in her letter. वो कहती है मैं अपने ख़त में ये नहीं बता रही हूँ कि औरतें घर छोड़कर आज़ाद होना चाहती हैं. She says that the night is very clear. रात बहुत स्पष्ट है. बहुत मतलब जो जब आप का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आज की रात बहुत साफ़ सुथरी है, क्लियर है. शी कैन सी द कंप्लीट मून विच इज़ शाइनिंग. वो कहती हैं कि मुझे पूरा मून मतलब यहाँ पर जो काम होना है वो बिल्कुल क्लियर है. द कंसेप्ट इज़ टोटली क्लियर. शी इज़ सेइंग शी कैन सी द कंप्लीट मून मतलब जो कंसेप्ट है, जो काम होना है वो हो के रहेगा. बिल्कुल क्लियर मून है, कोई भी confusion नहीं है. The smell of leaves and lichens is like a voice which is yelling and expressing a desire for freedom from the confine of the house. कहते हैं ये जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, और लिचन्स हैं जो एल्गी और फंगी हैं उस जो पेड़ों में लगे होते हैं और उनकी एक अलग सी स्मेल होती है. वो आज कैसी लग रही है, वो येलिंग की तरह, चिल्लाहट की तरह, मतलब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हुए कि मुझे बाहर जाना है, मुझे निकलना है, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अब इसमें नहीं, बंधन में नहीं रह सकती. वो ऐसी आवाज़ों जैसी लग रही हैं. आइए इस थर्ड स्टैंजा में हम लिटरेरी डिवाइस देख लें. एलिट्रेशन है. लॉन्ग लेटर्स फ्रॉम फॉरेस्ट, स्काई स्टिल, leave and lichens, LL, FF, SS, LL again. So alliteration है, enjambment is there, imagery is there. The poet has tried to create a sense in which he is observing all the things happening. Okay, तो सारी चीज़ें हैं. और लास्ट स्टैंजा इसका है. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash upon the crown of the tallest oak. यहाँ पे ये पोम ख़त्म होती है. विस्पर्स का मतलब होता है मरमर, खुसखुसा के बात करना. स्टैम्बलिंग का मतलब होता है ट्रिप ऑन. फ्लैश का मतलब होता है ग्लेयर और शाइन. ओक ट्री आपको पता है ये पहाड़ों पर होता है, फर्नीचर्स बनाने के काम आता है. अ लार्ज स्ट्रॉन्ग ट्री जनरली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर. आइए देखते हैं. Her head is full of the slow sound made by the trees which are desperate to move out. यहाँ पर जो हमारी राइटर हैं वो फेमिनिस्ट हैं और वो औरतों की आवाज़ को बहुत अच्छे से सुन पा रही हैं और उनका जो दिमाग है वो उनकी फुसफुसाहट से भरा हुआ है, जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही हैं. These sounds will not be heard the next day. अगर इन्हें आज मौका नहीं दिया गया तो ये नेक्स्ट डे सुनाई नहीं देंगी. The poet asks the readers to listen carefully as the change is about to take place. The poet जो हैं वो सभी को कहती हैं कि बहुत ध्यान से इसको सुनिए क्योंकि आज रात कुछ ना कुछ खास, बहुत ही खास होने वाला है. She hears the glass window breaking, the trees stumbling out into the night. उन्होंने देखा क्या कि जो सुना कि ग्लास विंडो, जो शीशे की ग्लास है, कांच है, वो टूट जाती है और जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, वो स्ट्रम्बल करते हुए, लड़खड़ाते हुए किसी भी तरीके से बाहर आ जाते हैं रात में. द विंड इज़ ब्लोइंग आउटसाइड. जो विंड है, हवा है, वो बाहर बह रही है, उसका अलग ही वो है और जो हवा है उसमें एक अलग ही खुशबू है. इट मीट्स द ट्री.
और ये औरतों के फेवर में है। जो हवा है मतलब जो सिनेरियो चल रहा है, आपने देखा होगा अब औरतें पीछे नहीं हैं, तो जो हवा है वो नारी सशक्तिकरण के साथ है। द मून इज़ लाइक अ मिरर, जो चंद्रमा है वो बिल्कुल शीशे के समान है, पारदर्शी है, जो है वो दिखा रहा है। एंड इट अपीयर्स टू हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस, जो चंद्रमा है वो टुकड़े टुकड़े में हो चुका है। एज द शेडो ऑफ द ओक ट्री डिवाइड्स द मून इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, जो ओक ट्री है वो मून के सामने है, और जब हम सामने से देखते हैं तो ओक ट्री की डालें और ब्रांचेस जो हैं वो चंद्रमा के सामने, मतलब उसकी चंद्रमा पे परछाई पड़ती है, तो चंद्रमा पे जब परछाई पड़ती है तो वो ऐसा लगता है कि चंद्रमा टुकड़ों में बट चुका है, और हर डाल पर एक चमकता हुआ टुकड़ा चमक रहा है, चांद का एक चमकता हुआ टुकड़ा चमक रहा है। लास्ट स्टैंजा में हम लोग देख लेते हैं क्या है। लास्ट स्टैंजा में सिमली है, द मून इज़ कंपेयर्ड टू अ मिरर, मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो सिमली है। और पर्सोनिफिकेशन कैसे है, द ट्री आर स्ट्रैम्बलिंग फॉरवर्ड, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ट्री जो है वो मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैम्बलिंग फॉरवर्ड बताया गया है। तो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोम, एंड इफ़ यू हैव एनी query then you can write down in the comment box. And very important thing, इस पोम को अगर आप बार बार नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ये पोम जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसको जो है आप जब 2, 3, 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ट्रीज़ को जब तक आप एक कैरेक्टर नहीं देंगे, एक औरत नहीं समझेंगे, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द पोम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep on reading, keep on enhancing your knowledge. Till then, take care. Bye bye.